I'm very popular. Already very popular. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for your token of appreciation. Welcome to the college, sir. Over to you. Okay, do you want me to use the mic without mic? Mic. Okay, first of all, thank you very much for calling me here. तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे आज कौन आया है, सीईओ को बुलाना है कि मेरे को बुलाना है? दिस इज नॉट मी, दिस टी शर्ट इज मी, दिस इज नॉट मी. सो अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को एक कोट निकालना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स नॉट मी ऑल. देन यार वो कोट डाल के ना वी हैव टू डू द करना पड़ता है एक्टिंग. सो दिस इज मी नाउ. अब बोलो जो बोल रहे हैं. Okay, so this is frankly speaking, this is the first time I've been invited to talk about my story. Otherwise, normally I always get an invite कि सर मैं स्कोर कैसे improve करूँ या मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूँ. So this is normally I always invited for. Okay, this is okay now. ठीक है. So I'll share my journey in a short and sweet way, and I want you to ask as many questions as you can. So before I start, how many of you have been following my channel, our channel? So almost half of the crowd. 10 p.m. show. Just start. See, G strategy, those who don't know about the G strategy, we can't be expert in every area. हर एक का कोई strong area होता है, कोई weak area होता है. So जो भी strong area होता है, you have to play on the front. बट वट एवर द वीक एरिया उसमें अपनी इज्जत बचाओ. सो इज्जत बचाने का ईजी वे आउट इज जी स्ट्रैटेजी. Fine, so this is where the G strategy started from. So today I'll cover a few points as well into all these things because my life has been evolved because of that. So whatever I have done, I explain the same thing to everyone. So journey started. I'm an engineer by background, worked in IT company for 2 years, and one fine day I quit कि भैया ये काम नहीं कर सकता. I want to do MBA. ठीक है. So I went for my MBA. MBA में जाने के बाद I realized कि I want to do something on my own. आप में से how many of you want to start your own company? So in every batch, almost 1/3 want to start their own company. You know when is the best time to start the company? What age is the best time to start the company? Mid-20. Mid-20 तुम्हें आता क्या यार? 29. That was very precise. 22. Okay. और कोई 22 ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? 35, 30, 40. कौन बोले right now? The best time to start your company is right now. ठीक है, क्योंकि ये 2 साल तुम्हारे पास है वेयर यू आर गोइंग टू डू वेयर यू कैन डू जो आपको करना चाहते हो. एक बार वंस यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वंस यू स्टार्ट योर ओन, वंस यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा. एंड द मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम वंस यू स्टार्ट वर्किंग इज व्हाट? बॉस. एंड बिकॉज यूर एन MBA, तो प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? योर सैलरी इज गोइंग टू बी अराउंड 1 लाख. स्टार्टिंग सैलरी फ्रॉम SAS विल बी अराउंड 1 लाख. बॉस को रोज लगेगा इसको 1 लाख किस बात का आ रहा है. पहली बात, बॉस को समझाओ कि भाई साले तेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, कंपनी पे कर रही है ना. द वे कंपनी इज पेइंग 2 लाख टू यू, दे आर पेइंग 1 लाख टू मी. इफ आई एम नॉट वर्किंग, यू आल्सो नॉट वर्किंग, वी आर द सेम टीम. ठीक है, बट वो प्रॉब्लम है इंडिया में. ये क्यों कमा रहा है? ये 24 साल का लड़का आके क्यों कमा रहा है इतना पैसा? दैट वॉज माई फंडामेंटल प्रॉब्लम व्हेन आई वॉज इन UK. सो माई सैलरी, सो एनीवे हम कहाँ थे पहले? हाँ, तो जिसको अपना कंपनी शुरू करना है अभी कॉलेज में स्टार्ट करो. So when I was in JBIMS, I felt that everyone is focusing on CAT. Everyone talks about CAT. Nobody talks about the CET audience. जबकि CET is a equally big market. In Mumbai, more people give CET than CAT. In Pune, more people give CET than CAT. Last year, if you want that numbers, CAT is given by 2,20,000 students. CET was given by 1,60,000 students. So obviously a big audience. Yeah, mic is not working. Yeah, maybe it's not close. Okay, so this is where I started कि let's focus on CET. तो CAT भी करेंगे हम, but अपना मेन काम होगा CET. And I was a CET topper, तो वो एक एडवांटेज हो गया कि because I was CET topper, तो I could talk about CET more. Okay, so I went to JB. So JB जाके, after going to JB, I had a call whether, तो I started my own company कि कोचिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे.
द फर्स्ट लेक्चर आई हैड वाज इन द कैंटीन ऑफ माय कॉलेज. सो JB कैंटीन में भी अनाउंस द वर्कशॉप. तो हमने ऑर्कुट पे डाल दिया, यहाँ वहाँ डाल दिया. So 6 people came for the workshop. So one night workshop, 6 people. Second workshop, 16 students. The exact number. Third workshop, 34 students. Fourth workshop, 160 students. तब लगा कि यार अभी कुछ हो सकता है यहाँ पे. So then I thought कि सब छोड़ो MBA, हम ये काम करते हैं. So then I called my dad कि डैड मैं सोच रहा हूँ ये सब नौकरी छोड़ के ये करने का, अपना खुद का चालू करेंगे. फिर डैड ने दी मेरे को मोटी मोटी गाली. सो एनीवन पंजाबी है दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या गाली दिया होगा. अमृतसर से किसी का डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सो जिसने MBA लोन पे लिया है उससे पूछो मेरे को जॉब नहीं करने का, ठीक है, वो डैडी आंसर देंगे उसका. फिर सो सेम हैपन टू मी एज वेल. सो आई वांट टू गो अब्रॉड. एज अ बीइंग अ टिपिकल पंजाबी हमें जाना है बाहर, हमें इंडिया में काम नहीं करना था. सो आई वेंट अब्रॉड. सो दैट वाज माय टारगेट. ओके, सो सीटिंग स्टार्टेड इन कॉलेज ओनली. सो आई स्टार्टेड सीटिंग पार्ट टाइम पास करते करते मैं स्टार्ट कर दिया कॉलेज में. ओके, सो देयर वाज नो टारगेट टू एक्सपैंड, नो टारगेट टू गो इनटू दिस फुल टाइम. आई वाज एंजॉयिंग टीचिंग, दैट्स ऑल. सो तो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू रेज इज पैशन. अगर आपको कोई पैशन है ना किसी चीज़ का, दैट यू कैन वर्क फॉर फ्री. लाइक आई लव टू टीच, आई कैन टीच फॉर फ्री, ठीक है, विच पेस वो अलग बात है, बट आई डोंट माइंड इवन इफ आई डू टीच फॉर फ्री. So anyone here want to share his passion about anything? Dance, painting, drawing. किसी का कोई passion है that you can work for free? Any passion? किसी का? Dancing, gym. As a zookeeper. As a zookeeper. Zookeeper. Yeah. और तुम MBA कर रहे हो यहाँ पे आके? ये आंसर ना इस रूम से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है? दोबारा मत बोलना इसके बारे में. तुम MBA हो यार. हाँ, जिम. एनीवन समवन सेड जिम? यस. सो इफ आई पे यू 5 लाख रुपीज़ पर मंथ कि तुम बस इंडिया में घूमो और हर कॉलेज में जाके बस जिम का ज्ञान बांटो, चलेगा? 5 लाख चलेगा पर मंथ का? दौड़ेगा, ऑब्वियसली दौड़ेगा. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. सो इट्स लाइक समबडी इज पेइंग मी टू फॉलो माई हॉबी. बहुत अच्छा दे दो मेरे को क्या, मेरे बाप का क्या जाता है. फाइन. So obviously I'm not earning as much as I used to earn in UK, but I'm more than happy. So happiness is something which you can't do. ठीक है, तो मैं सीटिंग छोड़ के went to UK, got a job abroad, so went to UK. लंदन जाने के बाद पता चला कि डॉलर में कमाई है तो डॉलर में तुम्हारे खर्चे भी हैं. So saving is X amount of money, and surprisingly the amount of money I was saving is almost same as what my batchmates were saving in India. 1.5 लाख का अगर इंडिया में किसी का पैकेज है तो सेविंग कितना होएगा? अराउंड 1 लाख तक यू कैन सेव. कितना खर्चा कर लेगा यार? इफ़ योर सैलरी इज 1.5 लाख इन हैंड, यू कैन सेव अराउंड 50-60,000 या 1 लाख पर मंथ. यू कैन सेव अप टू 1 लाख यू कैन सेव. यूके में माई सेविंग वॉज 1 लाख पर मंथ. तो सारा क्या उखाड़ लिया यूके आके फिर? बट ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये वो सब है. तेरे पास कौन सी गाड़ी है? छोटी मोटी. मेरे पास है BMW, ठीक है. दैट वॉज अ थिंग. सो द फर्स्ट कार विच आई बॉट इन UK वॉज मर्सिडीज. फाइन. सो अरे बाबा मिलता रहे, बड़े आराम से मिलती है वहाँ पे. ओके, इन MBA में आने तक आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव बाइक, हाउ टू राइड अ बाइक. JB में बाइक खरीदने के बाद मैंने सीखा कि हाउ टू राइड अ बाइक, ठीक है. पल्सर 150cc उस समय वही चलता था. तो लंदन में जाने के बाद मर्सिडीज खरीदने के बाद मैंने सीखा कि इसको चलाते कैसे. So I learned, I passed the driving test. ये when people are shocked कि why you are buying a car without a license. मैं कहा यार मर्सिडीज तो लेनी है, ठीक है. तो that was my dream. तो I fulfilled that. So when I finally planned to quit and come back to India, that was a very hard thing to take, a very hard call to take. I have to sell my car, and I love to wear overcoats. बारिश में जो ठंडी का जो कोट्स होता है बड़े वाला, I used to love them. So I had around 10 coats यहाँ तक पूरे बड़े वाले. वो डाल के फील आती है रोड पे चलने का. एंड बॉम्बे में यू नो हाउ वी लिव. तो दिस इज ओवर ड्रेस बाय द वे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज माई एक्चुअल ड्रेसिंग. टी-शर्ट, पतली टी-शर्ट बस, ठीक है. सो व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, सो दैट वाज द प्लान के करे ना करे. सो आई केम बैक टू इंडिया अलॉन्ग विद द जॉब. एक बार कॉलेज के लंदन में जॉब के साथ आए. दिस इज वेयर द टर्निंग पॉइंट केम. सो आई टुक अ लेक्चर इन
Pune. So around 100 people in the room. So I took the lecture. I taught them the skills and everything. जो भी lecture के बाद उनसे पूछा कि should I do this thing full time, leave UK job, come to India and start this thing, कि go back to UK. 90% people said go back to UK. Not because of the teaching style, because of कि यार लंदन छोड़ी कौन आता है यार, अच्छी का तुम जॉब कर रहे हो. My salary was around 48 lakh का पैकेज, एनुअल पैकेज. सो पर मंथ अराउंड 4 लाख का पे था. तो 4 लाख की पे, तुम लंदन में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लाइफ तुम्हारी सेट है, ठीक है. तो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम वॉज. तो एवरीवन सेड कि गो बैक टू यूके. सो बट आई थॉट कि नहीं करते हैं. सो दैट बैच वी कन्वर्टेड अराउंड 58 स्टूडेंट्स इनटू JBMS फ्रॉम सीटिंग. तो 120 में से 58 बच्चा इन JBMS वर फ्रॉम सीटिंग. रिटन टेस्ट, मॉक सीरीज, GDPI कुछ भी ले ले तू, आजा बस, ठीक है. तो दैट वॉट टर्न मी अराउंड कि नहीं यार, वी कैन डू इट इनटू, वी कैन कम बैक इनटू दिस फुल टाइम. सो दैट इज वेरी क्विट. ये सब छोड़ो, अपन यही करते हैं. बिकॉज आई एम एंजॉइंग मोर देन एनीथिंग, आई एम एंजॉइंग. सो आई केम बैक टू इंडिया, स्टार्टेड CET King with one branch. So the best part, the sad part was I have to leave UK life. Even today, जिस दिन CET King बंद होगा, I would love to pack my bag and go back to UK. Consulting is my love. Anyone want to go into consulting? Long term go into consulting? Consulting, घूमना फिरना है, सब कुछ करना है, तो consulting is the best thing to do. Fine. So अभी आपने देखा होगा तो जो G strategy, this all these things, nothing but strategy only. So consulting is everywhere. You have to, even if for preparation also you need more consulting skills in CET than in CAT. ठीक है. तो so this is what I'm doing. So they're still there कि अगर कुछ ना हुआ, I can go back. I don't mind going back and starting again. Okay. So the main दो चीज़ चाहिए होता है. एक तो you love to do something, एक उसका रिजल्ट आना चाहिए ना. तुम तो कर रहे हो, तुम तो खुशी खुशी कर रहे हो, बट कोई आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या फ़ायदा. But when I see the response coming in, when I see the result is coming in, then when I quit. Then I went back to UK. I told my boss कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर ना मिला तो सर प्लीज़ वापस दे देना, ठीक है. That was my thing. I had a work permit in UK. I had everything. I was 6 months away from PR. और अगर UK में PR अगर मिल गया तो then I have to surrender my Indian passport and take a UK passport. तो that was the final call कि यार क्या किया जाए, UK में रहना है कि वापस आना है. So then I thought कि वापस चलते हैं. अगर वापस आके CET King ना चला इंडिया में, then again I have to go back in UK and start from zero. तो क्या किया जाए, क्या ना किया जाए. So then finally quit. देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. So I came back to India. और चल पड़ा CET King. Because even today nobody is talking about CET. Everyone talks about CAT. That's the main problem. Fine. So this is the way I started. So आने के बाद तो फिर चल पड़ा तो चल पड़ा. So I am still working around 16 hours every day. But it's not work. I'm enjoying my life. So whenever my dad comes and talk to me कि क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा हूँ, I'm enjoying. More than anything, I'm enjoying. ठीक है. So this is what I'm doing now. So if you follow your passion, पैसा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन you will enjoy more. तो भाई तू जिम खोल, तो बॉडी है ना, हाँ ठीक है. नहीं तो तू ऐसा होता तो बोलता मैं जिम, तो थोड़ा डाउट आता, तो ठीक है ना, करो ना, क्या किससे रोका है. डिग्री होनी चाहिए हाथ में, सो दैट कल को ना चले तो वापस वी कैन गो बैक टू इंडस्ट्री. फाइन. सो दिस वॉज माई, योर गोल्स चेंज विद लाइफ. तो अर्लियर माई गोल वॉज कि बाहर जाना, ये जाना है, फिर बाहर जाके हो गया कि आई वॉन्ट अ स्टेबल लाइफ, दिस एंड दैट. राइट नाउ माई गोल इज टू स्टेबलाइज माई पेरेंट्स. माई पेरेंट्स आर इन अमृतसर, सो आई वॉन्ट देम टू कम टू बॉम्बे. सो अभी मेरी लाइफ में वो चल रहा है. नाउ माई गोल, लाइफ गोल्स आर कि पेरेंट्स को बॉम्बे लेके आना, टू शिफ्ट देम टू बॉम्बे. ओके. तो सबको इकट्ठा करने में टाइम जाएगा. तो दिस इज माई टारगेट नाउ, द फर्स्ट टारगेट. सेकेंड टारगेट इज टू रोम द वर्ल्ड. आई बीन टू 29 कंट्रीज. माई टारगेट इज 50 इन नेक्स्ट 5 years. सो दैट्स माई गोल, अदर गोल. तो मतलब जॉब काम छोड़ के दीज आर माई टारगेट्स नाउ, क्योंकि हो गया वो, आई हैव डन देयर. और मेरे को ऊपर नहीं जाना है, जितना है उतना मेरे लिए बहुत है. फाइन. सो यू हैव टू पुट अ स्टॉप समवेयर, अदरवाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज अंबानी. यहाँ तो तुम अंबानी को करो भैया, अंबानी के ऊपर जाएंगे हम, तो सारी उम्र लगे रहो फिर. अदरवाइज यू पुट अ ब्रेक समवेयर. सो माई ब्रेक पॉइंट वॉज कि मेरे को अगर माई UK में सैलरी वो 50 लाख, इंडिया में अगर 50 लाख का पैकेज मिल जाए तो आई एम मोर देन हैप्पी. उसके ऊपर मेरे को नहीं जाना. दैट वॉज माई टारगेट. सो डे माई टर्न ओवर टच 1 CR, द डे आई स्टॉप्ड. एज ऑफ टुडे आई डोंट नो हाउ मच स्टाफ आई हैव. मैम ने मेरे को पूछा कि आपकी कंपनी में कितने लोग हैं. मैं क्या, मुझे नहीं पता. 30 के ऊपर इतना पता है क्योंकि सैलरी आई गिव. सो
आई नो द टोटल नंबर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टोटल नंबर, बट आई नो कि मोटा मोटा 30 के आजू बाजू होगा. एंड आई डोंट नो माई टर्न ओवर, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव, आई हैव नो आइडिया. फाइन. सो आई एम अ बैड एग्जाम्पल ऑफ MBA, क्योंकि एज एन MBA दिस वॉज जॉब टू अंडरस्टैंड क्या है क्या नहीं है. ठीक है. जब मैंने CET की स्टार्ट किया था, देवर टारगेट्स, ह्यूज टारगेट्स. हम ये करेंगे, प्रोफाइल ये करेंगे, वो करेंगे. दिस हैपेंड इन 2012 व्हेन आई केम बैक टू इंडिया एंड स्टार्टेड CET किंग. दैट वाज माय टारगेट. के बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको यार, तुम 5 year प्लान, 10 year प्लान. सो आई मेड ऑल दिस प्लान्स, ब्यूटीफुल प्लान्स, बिकॉज आई वाज एन MBA, सो आई नो ऑल दिस थिंग टर्म्स, ऑल दोस टर्म्स. तो प्लान बना के आया. 2012 में मैंने CET किंग चालू किया, अक्टूबर में सपोज. सितंबर 12 हुआ था स्टार्टिंग डेट ऑफ CET किंग. नवंबर, दिसंबर, जैन में न्यूज़ आते हैं इस बार CET बंद. तो फीमेट का एग्जाम आएगा इस साल से. तो सुन कॉल में, सर CET बंद हो गया, मेरा क्या होगा? सर तेरा छोड़, मेरा क्या होगा? मैं तो लंदन से जॉब छोड़ के आया था CET के लिए. तो CET गया, फीमेट आया, CET वापस आया, वो दिन गया, आज तक लाइफ स्टेबल नहीं है. फाइन. सो मेन थिंग, वन ऑफ द मेन थिंग विच आई लर्न कि बिजनेस वो ज़माना गया कि दादे ने खड़ा किया तो आगे सारा खानदान खा रहा है. वो टाइम गया. अभी अंबानी, छोटे मानी को आपने देख लिया. टुडे इज द ईरा ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ऑल ऑफ अस आर सेल्फ एम्प्लॉयड. जब तक मैं खड़ा हूँ काम चल रहा है. जिस दिन मैं बैठ गया काम बंद हो जाएगा. आई नो दिस थिंग. द डे आई एम नॉट इन्वॉल्व विद CET किंग, इट विल सर्वाइव फॉर 1 year or 2 year मैक्स. फाइन. सो डोंट टेक इट द बिजनेस, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. फाइन. तो काम तो करना ही है भाई. तो काम वो करो वेर यू इन्जॉय. सो इफ़ यू हैव अ पैशन, एनी काइंड ऑफ अ पैशन, तो फिर काम नहीं लगेगा. देन यू आर एंजॉइंग इट. ठीक है. सो दिस इज द वे माई स्टोरी इज. एंड एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, आई एम मोर इन टू क्वेश्चन आंसर थिंग्स. आई लव टू इंटरेक्ट मोर देन डूइंग अ one way speech. Any questions? You have to ask question because I can't talk that long. I can teach maths, I can't talk for Gyanbaji. That was the first letter which we climbed. After that, like completing the whole lab, like so what professional courses do we need to go so that it adds a complementary to our CDN? Okay, that is my second point which I came for. के करना क्या है अगले 2 साल में. You are in first year, second year? First year. अगले 2 साल में क्या किया जाए so that you can get the top job from campus. So G strategy for the campus placement. Fine. उसमें 5 चीज़ें आपको करनी है. So this is my typical 5 things which I did, which I recommend to everyone to do. Number 1 is you are coming to, अगर आप किसी बच्चे को मिलते हो, स्कूल के बच्चे को, तो क्या बोलोगे, क्या पूछोगे कि how you are studying? तो number 1 is study. तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा. Unfortunately you have to study. So academic record always will be number 1. But you don't need to be 80, but even if you're doing 60 plus, 70 plus in the college, it's more than sufficient. Fine. So you don't need to be a topper, but you need to be above average. उल्टा देखा मैंने, जितने भी हमारे बैच के टॉपर थे, except consulting, nobody want them. ठीक है, consulting want the topper. I don't know why, but consulting want the toppers. But apart from consulting, marketing, sales, finance, nobody want the toppers. They want people who are very good in overall personality with good marks. ठीक है. So but number 1 still academic record have to be there. Your resume will not be shortlisted if your acads are low. ठीक है. जो पाप किए वो अपन ठीक नहीं कर सकते. 10-12 के मार्क्स we can't change, but what we can change is college के मार्क्स. So college में आके if you can be 70 plus, it's a good academic record. Fine. Point number 1, academic record अपना अच्छा कर लो, ठीक कर लो, above average कर लो, you are sorted. ठीक है. Number 2, आपका कमिटीज़ का हो गया. कमिटी फॉर्म हो गया सब. हाँ, तो लेट में तो दिसंबर आ गया यार. फाइन. नंबर 2, माई थंब रूल इज़ कि अगर आप तुम किसी कमेटी में हो तो मतलब तुम्हारी प्लेसमेंट लगनी ही लगनी है. नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिक्स कि तुम्हारा कमेटी में है, झोल किया, ये करेंगे, वो सब आई डोंट वांट टॉक अबाउट. बिकॉज यू हैव बीन सिलेक्टेड इनटू अ कमेटी. यार प्लेसमेंट कमेटी का इलेक्शन इज सबसे टफ जॉब. कौन है यहाँ पे, है कि प्लेसमेंट में? तो जो ये 180, 120 में से चूज होके आए हैं, तो दे आर ऑलरेडी बेटर देन द
इफ नॉट द 180, इफ नॉट द बेस्ट, दे आर द बेटर अमंग द गुड पीपल, ठीक है। सो उनका प्लेसमेंट लगना ही है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, प्लेसमेंट कमेटी सबसे थैंकलेस जॉब। आज मैं अपने डायलॉग मारा था। कब मारा मैंने? आज मैम ने डायलॉग मारा था। अच्छा, मैम ने डायलॉग से मिला मारा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तो मेरा जॉब लग गया तो मेरा हार्डवर्क है, मैंने किया, मैंने कोशिश किए थे, मैंने ये किया था, वो किया था। अगर ना लगा तो तेरी गलती है, ठीक है। तो प्लेसमेंट कमेटी का ही प्रॉब्लम है। या बट वन थिंग इज देयर, इफ द कंपनी इज कमिंग टू योर कैंपस, अगर आप किसी कमेटी में हो, उनको पहले ही पता कि यू आर बीन इलेक्टेड आउट ऑफ द फ्यू। तो इलेक्टेड फ्यू है, मतलब ये बंदे का थोड़ा बेटर ऑफ होगा, इसको उठा लो पहले, बिकॉज ही हैव बीन ऑलरेडी बीन इंटरव्यूड बाय एवरीबडी। आर यू गेटिंग मी? सो वो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, नो डाउट अबाउट दिस। सो कमेटी, कोई भी कमेटी, एलुमनाई कमेटी, ये कमेटी, अगर किसी कमेटी के मेंबर हो तो इट इज़ गुड, नहीं तो पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन। सो मेरा जो टिपिकल डायलॉग होता है, कोई नाचने को बोलेगा नाचो, लेकिन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। जितने सर्टिफिकेट इकट्ठे कर सकते हो करो, ठीक है। कौन सा सर्टिफिकेट किधर काम आ जाए वी डोंट नो, ओके। सो पार्टिसिपेट इंटर कॉलेज इवेंट, पार्टिसिपेट इन डिबेट, दिस दैट, जो मिलता है, डांस कॉम्पिटिशन, सब करो, ओके। ओके, आप में से किसी का प्रोफाइल सेट है क्या कि 2 साल के बाद तुम्हें यहाँ पे जाना है, सेल्स में, मार्केटिंग में? किसी का सेट है क्या विद इन मार्केटिंग आई वांट टू डू दिस? दोनों चीज़ होना चाहिए, तुम्हारी चॉइस और वो वाला प्रोफाइल कॉलेज में आना भी चाहिए। नहीं तो बोलेगा आई वांट टू बी द CEO ऑफ अ कंपनी, बस साले तू ऐसा ही से बैठा है। हाँ, क्रेडिट मैनेजर। सो इफ यू वांट टू बिकम अ क्रेडिट manager, start working on the resume. Your resume have to show all these things. Okay, by me I say the same thing in Ahmedabad as well. No one is going to become a CEO immediately. The youngest CEO of a big company is at 37. ठीक है, तो जिसको 22 साल में CEO बनना है, भाई तू भी बैठ जा। तो it's not like I'm saying SIS in your college. I go to Ahmedabad, I say the same thing in Ahmedabad. You are in Ahmedabad, you are not from MIT. तो MIT वाले को भी जाकर भी नहीं होने वाला उसका, तो वो डोंट वरी अबाउट दैट। सो नंबर 1 academic record, learn as much as you can. नंबर 2 इज पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन। जिधर मौका मिलता है करो पार्टिसिपेट यार, और आपको आते रहते होंगे, इनवाइट्स आते रहते होंगे, तो जस्ट कीप पार्टिसिपेटिंग। कौन सा चीज़ कहाँ पे आ जाए, ठीक है। नंबर 3, वॉट एवर द प्रोफाइल, ओके, दिस इज वन थिंग यू कैन डू। आई डोंट नो आपके कॉलेज में ऐसा होता ही नहीं होता। इन लॉट ऑफ बी स्कूल यू कैन ट्वीक योर रिज्यूमे एज पर द कंपनी विच इज कमिंग। अलाउड आपके यहाँ पे? हाँ, तो अगर मार्केटिंग कंपनी आ रही है, आई कैन स्विच माई रिज्यूमे टू मार्केटिंग, ठीक है। उसके लिए द बेस्ट थिंग इज डू एज मनी इंटर्नशिप एज यू कैन, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जितना मिलता है करो। आई डिड 7 लाइव प्रोजेक्ट्स इन माई कॉलेज, 7, और एक कॉलेज ने दिया, बाकी 6 अंकल, पापा, फ्रेंड्स, ठीक है। सो जिसका भी डैड इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्राइवेट कंपनी, जिधर भी आपके डैड काम करते हैं, एक उनका रिज्यूमे, उनका कंपनी का नाम आपके रिज्यूमे पे आना चाहिए। फाइन, इफ़ यू गो वाया द ऑफिशियल वे, उनके HR से बात करके, फिर नहीं होने वाला काम तुम्हारा। मैं लिख के देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में वैसे ही होने वाला। वी जस्ट वांट वन ईमेल फ्रॉम देम कि दिस गाय स्टडीड दिस प्रोजेक्ट विद मी फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। ईमेल इज अ वैलिड प्रूफ। प्लेसकॉम हैव नो प्रॉब्लम विद द ईमेल, ईमेल इज अ प्रूफ रिक्वायर्ड। सो प्रूफ इकट्ठे करो, ईमेल करवा लो एक अंकल से, पापा से। सो अगर सपोज किसी का अंकल है हु इज़ इनटू बैंक, ही वांट टू वर्क इन अ बैंक, सो अगर बैंक में है, कल पहले खाने पे इनवाइट करो, पहले खाना खिलाओ। तो बहुत जरूरी है। खाना खिलाने के बाद हम उनसे मांगें कि हमें एक वर्किंग सर्टिफिकेट, हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए, स्टडी प्रोजेक्ट। हम ऐसा नहीं कि हमारे तुम्हारे कंपनी के ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, नहीं। वी जस्ट वांट टू स्टडी हाउ योर दिस वर्क, हाउ दैट थिंग वर्क। सो जितने ज़्यादा इकट्ठे कर सकते हो वो इकट्ठे करो। माई फ्रेंड्स यूज्ड टू वर्क इन IT, सो आई डिड 2 IT असाइनमेंट्स। जो कंपनी का नाम बोलोगे सब टॉप की कंपनी अपने पास है। माई डैड यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक, सो डैड का बैंकिंग का एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंसेस, पापा के दोस्त का। डैड के बैंक में उनका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वॉज टाइड अप विद अ थर्ड पार्टी, उसका भी रिज्यूमे पे डाला, ठीक है। जितने इकट्ठे कर सकते हो करो। नाउ व्हेन अ फाइनेंस कंपनी उससे कम ऑन कैंपस, सारे थिंग्स अबाउट दैट कंपनी, दैट रोल।
जो ये आता था हर एक का रोल अकॉर्डिंग टू दैट मैंने कर दिया अपना. सो द बेस्ट पार्ट वाज व्हेन द कंपनी कम ऑन कैंपस, डू यू नो अबाउट दिस ऑन द रिज्यूमे से दे विल रीड सम वर्ड एंड जैसे इसके ऊपर आपने क्या, इसके बारे में क्या जानते हो, तो जानते मैं तो काम किया इसके ऊपर और हम काम करेंगे. यू कांट फेक इट. ठीक है, तो काम करेंगे थोड़ा बहुत. वी विल लर्न अबाउट दिस थिंग. सो इजी वे आउट इज वॉट एवर प्रोजेक्ट यू आर गेटिंग इन कॉलेज, आपको कोई असाइनमेंट दिया गया कि आपको ये करना है वो करना है, कन्वर्ट दिस इनटू अ लाइव कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट आया, कुछ काम दिया आपको, अभी कुछ काम चालू किसी का, एनी प्रोजेक्ट. अरे प्रोजेक्ट कुछ तो सर नहीं दिया होगा, अगले हफ्ते तुम्हें ये बोलना है वो करना है, क्या कुछ मिला है, क्या करना है? आपको बिजनेस आइडिया देना है. परफेक्ट. लाइव प्रोजेक्ट तो हो गया ना, वो तो हो गया आपके पास. नहीं अब मैं बोल रहा हूँ कि कोई असाइनमेंट दिया हो, लाइक यू हैव टू गेट एन आइडिया. अभी तुमने आइडिया दे दिया, इट्स नॉट अ बिग डील. बट इफ़ यू अप्रोच योर डैड, कि डैड कोई बैंक में काम करते हैं, कि योर डैड के लिए तुमने ये काम किया है. आई हैव डन आइडिया जनरेशन वर्क फॉर अ बैंक. कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट बन गया. आर यू गेटिंग मी? इधर वी जस्ट नीड अ नेम. ओके, तो अगर ऐसा तुम उसको ट्विक कर सकते हो तो बहुत काम आएगा. ये आपको समझा मैंने क्या बोला? तो जो भी प्रोजेक्ट सर दे रहे हैं, मैम दे रही है, लाइक स्टडी द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ अफ्रीका, उसको भी पता कि गूगल होने वाला है यहाँ पे. ठीक है, नो इज गोइंग टू गो टू अफ्रीका टू डू द रिसर्च. बट ये अगर तुम्हारा कोई दोस्त, जान छान, अंकल कहीं से मिल जाए who is into automobile industry or who is into any industry related to Africa, so we can show that project, that assignment. So tweak all these things. ये live project की वैल्यू अलग है यार, स्टडी प्रोजेक्ट की वैल्यू स्टडी है. फाइन. सो ये सारी चीज़ें आपको करना है यहाँ पे आके. एंड लास्ट नंबर 5, एनीथिंग विच लेफ्ट, किसी को आइडिया? एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दो चीज़ें, कॉम स्किल्स, बट वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार. आई स्टैमर, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट केयर. वाई डोंट केयर? व्हाट इज दैट? कॉन्फिडेंस. साला खड़े होने कॉन्फिडेंस. आप में से कितनों में कॉन्फिडेंस है कि टू गिव अ प्रेजेंटेशन अलोन टू द कॉलेज, कि तुम्हारे सामने है आधा बैच. तो आधा बैच जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, साला खड़े हो जाओ यार. तुम इन 120 के सामने नहीं बोल पाओगे तो आगे जाके कॉर्पोरेट में क्या करोगे? फाइन. सो इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ MBA आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंस. बिकॉज तो सारे साल यहाँ पे टॉपर है, सब लोग हैं. ठीक है, तो आई वॉज अंडर दैट. वो होने वाला, वो आपके साथ भी होगा. दैट फर्स्ट ईयर योर कॉन्फिडेंस लेवल गोज डाउन थोड़ा सा. तो व्हेन यू सी द कॉम्पिटिशन के जॉब लगेगा नहीं लगेगा, जॉब छोड़ के आया था मैं. सो दैट हैपन्स विद लॉट ऑफ पीपल, इट हैपन्स. देन वन फाइन डे वेंट फॉर सम इवेंट ऑफ समथिंग. वहाँ पे देयर वॉज अ गाय विदाउट एनी आर्म्स एंड ही वॉज गिविंग अ लेक्चर. तो मेरे को लगा साला ये तो बिना हाथों के यार, अगर ये बंदा लेक्चर दे सकता है तो मैं तो ठीक ठाक हूँ एज कम्पेयर टू हिम. फाइन. सो दैट डे साइड कि यार जिसने हंसना वो वैसे भी हंसेगा. फाइन. सो फॉर एग्जाम्पल टुडे ऑन यूट्यूब माई रेटिंग इज 95%. सो 95% मतलब अगर आउट ऑफ 100, 95 विल लाइक, 5 विल हेट. सो आउट ऑफ 3 लाख फॉलोअर्स, सो आप अगर लेके चलो तो 15,000 पीपल हेट मी, विच इज ह्यूज यार. तो कोरा में डालेगा, यहाँ डालेगा, वहाँ डालेगा, विच इज ओके. बट रादर फोकस ऑन दिस 15,000, आई शुड फोकस ऑन 2,85,000. फाइन. तो जिसने तुम्हारे पीछे बोलना है बोलेगा, तो जितना सक्सेस करेगा लोग और गाली देंगे. फाइन, बोलने दे. लोग गाली दे रहा मतलब तुम अच्छा कर रहे हो, याद रखना. ओके. सो कॉन्फिडेंस, लास्ट इज अ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस विल टेक यू प्लेसेस. यार 50 लाख का नौकरी छोड़ के आना was a very big thing for me. My dad don't want me to come back. यार एक पंजाब में लोग बाहर जाने को 50 लाख देते हैं कि मेरे 40 लाख ले ले, मेरे बेटे को बाहर भेज दे, और तू वापस आने की बात कर रहा है. ओके. पंजाब में माई कज़न, आगे कज़न, उन पे ये भी बात फैला था कि इसने कोई लोन वोन लिया था, उतार नहीं पाया और छोड़ के यहाँ पे आ गया.